Hello all, welcome to the new session. So this session is on the difference between the deep learning and machine learning. So as we now we know about the machine learning and deep learning, how machine learning works and how deep learning works. So basically here the question is that key, what is the exact difference between the deep learning and machine learning? Because if you are considering the end semester examination, so there is a one important question that key write a difference between the deep learning and machine learning. So at that time you have to write down the answer for the same question. So here we'll discuss the detailed difference between the deep learning and machine learning, right? So let's start the session. So here these are the some parameters related to the deep learning and machine learning. Based on this parameter we'll try to differentiate the deep learning and machine learning. What is the exact difference between the deep learning and machine learning we'll discuss. So total 8 parameters are there. Based on this parameter we'll differentiate both the techniques, right? So here if we are considering the first parameter, that is definition. So we know the definition of deep learning, that is it is the subset of machine learning that focuses on the on learning of hierarchical representation of the data, right? So here whereas in case of a machine learning, we know that the machine learning is a subset of artificial intelligence that deals with the algorithm that learn from the data, right? So here again we know that in case of a deep learning we are trying to build different neural networks here, and by using this neural networks we'll try to find out the output, or we can say we'll try to find out the final prediction. So whereas in case of a machine learning we'll use the different algorithms, right? You know the different algorithm used in a machine learning, right? So the second parameter is data representation. So here learn from the raw data, typically using a neural networks without explicit feature engineering, right? So here this deep learning is used for the raw data. So typically neural networks, we are building a neural networks for the predictions here, right? But here one more important thing is कि फीचर इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे मैन्युअली फीचर इंजीनियरिंग आपको करना पड़ता है, जैसे हमने फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था जब हमने मशीन लर्निंग का डिस्कशन किया था, ठीक है? सो रिलाइज ऑन फीचर इंजीनियरिंग वेयर रिलेवेंट फीचर्स आर मैन्युअली एक्सट्रैक्टेड, राइट? सो if you have to extract the feature, if you have to extract the feature from the raw data, you have to use the feature engineering process, you have to use the feature selection as well as the feature extraction process manually, right? जो कि आपको ये डीप लर्निंग में नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा न्यूरल नेटवर्क में हो जाता है, right? So the third parameter is a feature extraction. So here automatically learns relevant feature and representation from the given data. So जो फीचर एक्सट्रैक्शन जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा डीप लर्निंग के अंदर ऑटोमेटिकली होता है, जो कि यहाँ पे मशीन लर्निंग के केस में आपको वो मैन्युअली करना पड़ता है, जैसे हमने पीसीए के बारे में देखा था, जैसे हमने फीचर सिलेक्शन के केस में फिल्टर मेथड, एम्बेडेड मेथड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? सो रिक्वायर्स अ मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ अ मशीन लर्निंग, राइट? फोर्थ parameter is model complexity. So here in case of a deep learning, highly complex model with multiple layers and millions of parameters. So यहाँ पे डीप लर्निंग हम कब यूज करेंगे? जब कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा या फिर कोई बहुत ही रॉ डेटा या फिर बहुत ही अनफिल्टर डेटा अगर हमारे पास होगा, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर होंगे, जिससे हाई डायमेंशनल डेटा भी हम कहते हैं, तो उस तरीके का अगर डेटा होगा तो मल्टीपल लेयर हम जनरेट करके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो वेर एज इन केस ऑफ मशीन लर्निंग रिलेटिवली सिंपलर मॉडल्स वेयर फ्यूअर पैरामीटर्स, राइट? सो यहाँ पे ये सिंपल मॉडल के लिए हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ फ्यू पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं और अल्गोरिदम बिल्ड कर दे जाते हैं, ठीक है? So the next parameter is performance. So here we can see the performance of both the technology like deep learning and machine learning. Now we'll discuss about the performance if we are using the deep learning technique. So here excels the
हैंडलिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा विद द हाई डायमेंशनल फीचर्स, राइट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। हाई लार्ज डायमेंशनल डेटा डीप लर्निंग के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। whereas in case of a machine learning, well suited for similar database, smaller database and structured data, right? So जो अगर database आपके पास small है और structured manner में है तो उस केस में हम machine learning यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करें, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेटा अमाउंट, राइट, ट्रेनिंग डेटा अमाउंट। सो हियर in case of a deep learning required a large amount of labeled data. So अगर deep learning का आप यूज कर रहे हो तो आपको डेटा जो होगा वो large amount of requirement of data is there, right? Whereas in case of a machine learning can work with smaller labeled data set also, right? So जो machine learning है वो smaller data set के साथ भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बिल्ड कर सकते हैं, टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज डोमेन एप्लीकेशंस। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है डीप लर्निंग, कहाँ पे यूज होता है मशीन लर्निंग, कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जिसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, राइट। सो जो पैटर्न्स, जो भी हिडन पैटर्न्स है रॉ डेटा के अंदर, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें से अगर कुछ हिडन पैटर्न्स हमें फाइंड आउट करने तो उस केस में हम ये जो डीप लर्निंग टेक्निक है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस करें तो मशीन लर्निंग की केस में हम रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड मैनी मोर, जो भी सारे एल्गोरिदम्स है उस केस में हम उसे यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के केस में। सो एग्जाम्पल्स कुछ है जो कि डीप लर्निंग के केस में एग्जाम्पल हम CNN का दे सकते हैं, जहाँ पे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क दैट इज CNN और एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है दैट इज RNN, राइट। सो ये दो न्यूरल नेटवर्क्स है जो कि हम इसे अल्गोरिदम्स कह सकते हैं, जो कि हम डीप लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ANN, CNN, RNN, राइट। सो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हमें बहुत पता है कि जैसे हमने बहुत सारे एल्गोरिदम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। जैसे अगर सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करें तो वहाँ पे डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, K मीन्स क्लस्टरिंग है, ये अनसुपरवाइज मशीन के केस में हो गया। उसके बाद नायो बायस है। ये नंबर ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। So this is the basic difference between the, or we can say this is the detailed difference between the deep learning and machine learning। अगर आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 8 पॉइंट वहाँ पे मेंशन करना होगा और आपको वहाँ पे आंसर वो लिखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपको ये पूछा जा सकता है, राइट। सो यस, दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।